लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना। का इस्तकबाल करें और इसे दर्जाई करें। हमारे हज के ताल्लुक से जो भी काम है, जिस तरह के भी जो भी बातें हैं, मैं लेटर के थ्रू उनको मैं इंशाल्लाह उस बात को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये कर्नाटक हज भवन हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हज भवन है। ये हज भवन की बुनियाद डालने वाले हमारे सदानंद गौड़ा जी मुख्यमंत्री है। उन्हीं की बदौलत से आज 100 करोड़ के ऊपर का हज भवन बना है। और इस हज भवन को हमने कोविड के अंदर बहुत ही बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। लगभग 1000 पेशेंट इस हज भवन में कोविड का सेंटर बनाए थे, जिसमें खाने और रहने का तमाम चीजें की कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के वायलेंस के थ्रू बहुत ही उन्होंने खिदमत करके यहाँ पे कोविड के अंदर भी बहुत अच्छा हमने काम किया है। और कुछ ही दिन में हमने जैसे ही इस साल हज को जाने का मौका मिला, जैसे हमें कंफर्मेशन मिला, तुरंत हमने इस बिल्डिंग को तैयार करके कोविड सेंटर से इस हज भवन को हमने तब्दीली किया है। मैं हमारे हज कमेटी के ईओ जनाब सरफराज साहब, हमारे मेंबर हमारे कबीर साहब, चांदपा साहब, मोइनुद्दीन, खुसरो कुरैशी, हमारे मैडम, तमाम लोग भी इस काम में बहुत जुड़े रहे। और हज कमेटी में जो भी डेवलपमेंट का काम है, हमारे मेंबर्स, हम लोग, हमारे स्टाफ सभी मिलकर इसको काम को अंजाम दे रहे हैं। मैं फिर से एक बार जनाब मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई साहब का दिल के गहरे से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, खुदा। ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ। ಇಂದಿನ ಈ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಗಳ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲು ಇನಾಗ್ರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ನಜೀರ್ ಹುಸೇನ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಖನಿಜಾ ಫಾತಿಮಾ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ MLC ಅವರು, ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಶ್ರೀ अब्दुल अजीम चेयरमैन हज कमेटी, चेयरमैन कर्नाटक माइनॉरिटी कमीशन, श्री अब्दुल चेयरमैन हज कमेटी ಹಾಗೂ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಕುಟ್ಟಿಯವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯರೇ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಯಾತ್ರಾ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು,
ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಸೀಬ್ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಹಜ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಸಿಗ್ತದೆ, ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಸೀಬ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮವನ್ನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ನೀವೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಹಜ್ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಕರಾಗಲಿ. ಅಲ್ಲ ಹಜ್ಜದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕಾಮದಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೋಕಾಮನೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ತಮ್ಮ ದುವಾ ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ನಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತಂದು ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಾಜಿ ಆಗ್ತೀರಿ. ಹಾಜಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಬದುಕನ್ನ ನೀವು ನಡೆಸಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಡ್ತೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಕೆಲವರು ಮಾನವರಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನು, ಕೆಲವರು ದೇವ ಮಾನವರಾಗಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆತನ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಳ್ಳೆತನ ಆಗುತ್ತೋ ಕೆಟ್ಟತನ ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಧರ್ಮವನ್ನ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಇನ್ಸಾನಿಯತ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಅಲ್ಲಾ ತಾಲಾಗೆ, ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗ್ತದೆ. ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಪವಿತ್ರತೆ, ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗುವಂತೆ ಬದುಕನ್ನ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು. ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಾರ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ, ಯಾವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಆ ದೇಶದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ, ಆ ನಿಸರ್ಗ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೊಸದೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ.
ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಅದೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ರೀತಿಯಿಂದ ತಾವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ನಾಡು ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ನಾಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲವಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲಿ ಅಂತಂದು ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಶುಭವನ್ನ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದು ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಪಾವಿತ್ರದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದು ಮಾಡಿದೆ. ತಾವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹಜ್ ಭವನಿಗೆ 40 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಮುಂದೆ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹಜ್ ಭವನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು, ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಕೂಡ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. इनॉग्रेशन करने जा रही ठंडा उसको नहीं आप लोग जिनको भी इसका मौका मिला है, आप नसीब वाले हैं। आपको वहां पे जाने का मौका मिल रहा है, जाके आप हज करके आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पूरी जिंदगी की एक तमन्ना रहती है कि जाके हज करके आए। कई सारे लोग पूरी जिंदगी की पूंजी जमा के इकट्ठा करके कोशिश करते हैं कि जिंदगी में एक बार जाके हज करके आए। कई लोगों को बार बार मौका भी मिलता है, लेकिन आज जिन लोगों को मौका मिला है, मुझे लगता है कि वो 40% में आपका नाम आया है। इसका मतलब है कि आप लोगों की तमन्ना थी हज करने की, बहुत दिनों से आप ख्वाहिशमंद थे हज करने का, आपको एक मौका मिला है। आप जाके ऐसी मुक़द्दस जगह, ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे कहते हैं कि जाके वहां पे दुआ मांगने से किसी की दुआ खाली नहीं जाती है। वहां जाके दुआ मांग के दुआ हासिल करके आते हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, उलमाए किराम कहते भी हम लोगों ने सुना है, जब जाके हज करके वापस आते हैं तो उनके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। एक नया बच्चा जो पैदा होता है, जिसके ऊपर कोई बीमार, कोई गुनाह नहीं रहता जिसके अकाउंट में, वैसा ही एक नए बच्चे की तरह आप वापस आते हैं। आप जितनी दूर जब जाएंगे, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिनकी तमन्ना थी जाने की, जिनको मौका नहीं मिला। आप तमाम लोगों को पता है कि हिंदुस्तान की आज क्या हालत है। आप तमाम लोगों को पता है किस तरह की सियासी फिजा है। आप तमाम लोगों को पता है हम लोग कैसे दौर से आज हिंदुस्तान में गुजर रहे हैं। ऐसे टाइम पे मैं आप तमाम लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग वहां जाएं। आप जाके हमारे देश के लिए, हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए, हमारे देश की यूनिटी के लिए आप वहां जाके दुआ करें। आप जाके वहां दुआ करें जिस तरह से लोगों को जलील करने की कोशिश की जा रही है, उससे बचाया जाए। आप वहां पे दुआ करें, सिर्फ अपने खानदान के लिए नहीं, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए नहीं, अपने अड़ोस पड़ोस नेबर्स के लिए नहीं, आप जाके पूरे मुल्क के लिए और मुल्क में रहने वाले तमाम
कौमों के लोगों के लिए आप दुआ करें ताकि हमारा देश तरक्की करे, हमारे देश में चैन और अमन रहे, हमारा देश दुनिया में जो हम अपना सर ऊंचा करके सबसे आगे खड़ा रहे, इसके लिए आप दुआ करें। मैं हज कमेटी मेंबर होने के नाते आप तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि रऊफुद्दीन कचेरीवाला साहब के चेयरमैनशिप में हम तमाम मेंबर, जिसमें फारूक साहब एमएलसी भी हैं, कनीर फातिमा साहबा एमएलए भी हैं और बहुत सारे मेंबर जिनके मैंने नाम लिया वो सब है, लगातार मीटिंग्स करके कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह की यहाँ फैसिलिटीज यहाँ पे दी गई है, जिसमें यहाँ पे रोशन बेग साहब यहाँ पे और सामने बैठे हैं, सदानंद गौड़ा साहब का नाम लिया गया था, उन्होंने इसका फाउंडेशन डाले, पैसे दिए करके, उनके साथ में रोशन बेग साहब भी बड़ी शिद्दत से एक जमाने से हज कैंप बैंगलोर में स्टार्ट करके हिंदुस्तान में जिस तरह से अलग अलग स्टेट से हाजियां जाते हैं, उसमें बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया तरीके से हाजियों को भेजना, उनको फैसिलिटीज देना, उनको हर तरीके का इंतजाम करने का काम ये लोग बैंगलोर के लोग रोशन बेग साहब के निगरानी में ये लोग शुरू किए थे। आज उसी सिलसिले को लगातार हज कमेटी जो उसके बाद जो लगातार हज कमेटी बनते जा रहे हैं, उसके मेंबरान और चेयरमैन जो है उस सिलसिले को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने हमारे मीटिंग्स में ये भी तय किया है कि हम लोग मैंगलोर में, हुबली धारवाड़ में और गुलबर्गा में तीनों जगह हम लोगों ने जगह दे के रखी है। तीनों जगह हज कमेटी तीनों जगह एक हज कैंप हम लोग बनाएंगे, जिसको हम लोग एक महीने के लिए हज के लिए इस्तेमाल करेंगे, हाजियों के लिए इस्तेमाल करेंगे, फिर 11 महीने कम्युनिटी के दूसरे कामों के लिए, एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये सारे कामकाज हज कमेटी के तौर से हम लोग डिसाइड किए हैं। उसके साथ में इस बार के भी जितने भी इंतजाम थे, हज कमेटी के सारे मेंबर्स अलग अलग अपने लिए जिम्मेदारी बांट लेके बहुत बढ़िया तरीके से इस बार भी जो है हज का सारे लोगों को इत्मीनान किए हैं, सारे फैसिलिटीज अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बड़ी खुशी है 2 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है आप लोगों को हज पे जाने का, और मेरी दुआ है आप लोगों का सफ़र आसान हो और आप लोगों के जो भी अरकान है अल्लाह ताला आसानी से पूरे करे और कबूल करे। और मेरी भी यही गुजारिश है कि आप ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए आप लोग दुआ कीजिए, वहाँ पर हर जगह सुकून चैन हो, इसीलिए आप लोग वहाँ जा रहे हैं। और जैसा कि नासिर साहब ने कहा, कल्लाड़ी और बैंगलोर और गुलबर्गा में भी हज हाउस का इंशाल्लाह जल्द से जल्द शुरू होगा, काम शुरू होगा। राहुल पटेली साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और ये जो आज का भी जो इंतजाम किया गया है काफी अच्छा इंतजाम किया गया है। मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ और तमाम कमेटी के मेंबर्स को भी मुबारकबाद देती हूँ, और आप तमाम से फिर से आप लोग को मुबारकबाद देती हूँ कि आप जा रहे हैं। आप सब लोग के लिए दुआ कीजिए। खुदा हाफिज़। जनाब नासिर हुसैन साहब गुलबर्गा शहर के एमएलए और हज कमेटी के मेंबर, एमएलए जनाब किशन गौड़ा साहब, रहीम खान साहब, साबिक वजीर जनाब और एमएलए जनाब यूटी खादर साहब, और हमारे अजीज दोस्त और जवाब साहब, हज कमेटी के चेयरमैन जनाब काफी सैयद साहब के लिए, और ये कोविड का खात्मा होने के लिए मेहरबानी से वहाँ दुआ फरमाए। यहाँ हर इंडिया हज कमेटी के चेयरमैन जनाब अब्दुल्ला कोटी साहब हैं। मैं अब्दुल्ला कोटी साहब से रिक्वेस्ट किया, अभी वज़ीर आला जनाब वमाई साहब को भी मैंने गुजारिश की कि हज हाउस हज भवन में और थोड़ा काम बाकी है, यहाँ ऑडिटोरियम का काम बाकी है, मस्जिद का और काम बाकी है, और छोटे मोटे काम बाकी हैं। मैं चाहता था, ये मेरा ख्वाब था कि बेंगलोर शहर में हमारे बुजुर्गों ने गौसा सराय, नबी सराय, बासित सराय बनाया था, और आज
सारे हिंदुस्तान से और कर्नाटका के कोने कोने से जब टूरिस्ट आएंगे तो उनको यहाँ रहने के लिए एक सराय होगा, एक अच्छा सा मॉडर्न सराय। एक महीना हज का होने के बाद सारे पूरा साल खाली रहना, इसका कोई माने नहीं रखता। गुजरात का हज हाउस हो, केरला का हज हाउस हो, जहां भी हज हाउस है सिर्फ हज के करके इस्तेमाल होता है, दूसरे वक्त पे खाली रहता है। तो मैंने हमारे जनाब राज्यसभा के मेंबर नासिर हुसैन साहब से गुजारिश की, रफीउद्दीन कचहरीवाला साहब से गुजारिश की, तो हमारे नासिर हुसैन साहब सब उनको लेके गए। दिल्ली में एक इस्लामिक सेंटर है, उस तरफ से ये बनाया गया है। अभी यहाँ एक अच्छी होटल आनी बाकी है, एक अच्छा कॉफी शॉप आने बाकी है, एक बिजनेस सेंटर आना बाकी है, तो एक ऑडिटोरियम आना बाकी है। तो अभी आपने सुना कि चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि हुकूमत कर्नाटका की तरफ से वो जो भी माली इमदाद है वो माली मदद देने के लिए तैयार है। नाउ आई रिक्वेस्ट दी हज कमेटी, ऑल इंडिया हज कमेटी चेयरमैन जनाब अब्दुल्ला भट्टी साहब, हज कमेटी ऑफ इंडिया से भी मैचिंग ग्रांट देंगे, तो इन दोनों पैसों से ये हज भवन का काम मुकम्मल होगा, ये उम्मीद करते हुए। चूंकि हमारे अजीम साहब को भी बोलना है और हमारे कई साथियों को भी आपसे खिताब करना है, मेरी चंद अल्फाज के साथ मैं जनाब रफीउद्दीन कचहरीवाला साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। जवाब of the Hajj House. As a chairman of Hajj Committee, we are strong with the Karnataka Hajj Committee. We will help, we can consider this suggestion. Mitro, you know, all last 2 years, the foreigners Hajj has not been performed due to Corona Mahamari. Alhamdulillah, our prayer accept Allah. This year, finally, the government of Saudi decided to perform foreigners Hajj. I am assure you, under leadership of Narendra Modi ji, we will provide best service, best facilities in Mecca and Medina. Medina, we provided accommodation inside the Makkasiyah, which means very near to mosque. When Hajis hear Azan, you can start mosque before that. I am not going to details. Here, Hajj Committee under leadership of our chairman organized very good facilities in this Hajj house, this Hajj camp. भाई और बहनों, दो दुआएं in front of you. अल्लाह सुब्हानहू तआला आपका हज यात्रा बिना किसी रुकावट के पूरी करे, आमीन। हम सबको और हमारा वतन हिंदुस्तान का अमन के लिए दुआया करो। With these words, I conclude my speech. Assalamu alaikum. شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام عليكم. ದಿನೇ ದಿನೇ ಅಶಾಂತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರ ತರ ಬದುಕಿದ್ರೇನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಾಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿ,
ಜನಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸುವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ತಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಶಾಂತಿಯಾಗಿದ್ರೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ರೇಟ್ಗಳು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವೆ. ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ತಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಜನಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿ. ಬಡವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜೀವನ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ದಿನೇ ದಿನೇ. ಆ ಬಡವರಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು, ನಾವು ಹಿಂದೂ ಇರ್ಲಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿರ್ಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಸಿಖ್ಖರಿರ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರ ತರ ಬದುಕುವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ತಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ ದೇಶ ಆವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರ ತರ ಬದುಕಿದ್ರೇನೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರ ತರ ಬದುಕೋಣ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಅವಾಗ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೂ, ಒಬ್ರು ಮುಸಲ್ಮಾನ್, ಒಬ್ರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಅವ್ರವ್ರ ಧರ್ಮ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅವ್ರವ್ರ ಜಾತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡದು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಜಾತಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಜಾತಿ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮಾನವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. सभी मेरे हाजी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले हाजी भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, साथ ही साथ हज कमेटी को, हमारे राव भाई जो चेयरमैन हैं, खासकर मेरे जिले के बिलर सिटी से वो ताल्लुक रखते हैं और मैं जहां से एमएलए हूं वो वहीं से बिलोंग्स करते हैं। तो इसके लिए मैं राव भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। साथ ही साथ पूरी में जो मेरे हाजी भाइयों की खिदमत में लगे हुए छोटे से छोटे लोगों को एक छोटा लेबर को भी मैं मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि इस खिदमत में जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और खास कर हम सब हज किस लिए जाते हैं, नमाज किस लिए पढ़ते हैं, ज़कात किस लिए देते हैं, जो भी दीन का काम किस लिए करते हैं, सिर्फ हमारा मकसद ये है कि हमारा आखिरी मंजिल जो पाना चाहते हैं वो जन्नत। और हम सबको, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अल्लाह हज ज़कात दुनिया जितनी बनी है सब कुछ नीचे उतारा है, लेकिन नमाज एक ऐसी चीज है अल्लाह नीचे नहीं उतारा। हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला के ऊपर सातों आसमान में बुला के वहां पे नमाज का तोहफा दिया है। उसकी कीमत क्या है देखिए। हज से बढ़ के नमाज का वो बताना चाह रहा था अल्लाह कि सबसे कीमती चीज नमाज है। मैं कुरान नीचे उतारा, पूरी दुनिया नीचे उतारा, खाना पीना रहना इंसान सबको नीचे उतारा, लेकिन एक ही चीज है मैं नमाज नीचे नहीं उतारा। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला के सातों आसमान में मैं नमाज का तोहफा दिया हूं। तो नमाज की कीमत क्या है बताना चाह रहा हूं। और वैसी नमाज को, नमाज, हज, रोजा, जितने भी नेक दिन के काम करो सिर्फ जन्नत में पाने के लिए। लेकिन अल्लाह
ये कबूल होता है नहीं होता है मरने के बाद ही पता चलता है, लेकिन अल्लाह उससे पहले बोल दिया है मैं माँ के कदमों में जन्नत रख दिया हूं। जन्नत पाने का रास्ता सबसे पहले यह माँ बाप ही है, हुकूक है। तो ऐसे कई दीन के काम है जिसको हम बहुत ही जिम्मेदारी से करना है। तो हम माँ बाप का भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, माँ बाप की दुआएं लें। हम जाके जिस दिन हज को जा रहे हैं उस दिन पेट मुंडी डाल के करने से ऐसा न होगा, लेकिन उस माँ बाप के दिल में हमेशा के लिए खिदमत। कोई माँ बाप पैसा या माफी या पेट मुंडी डालने से उनका दिल पिघलता नहीं, उनका दिल एक ही है मेरे बेटे मेरी खिदमत करे कुछ ना कुछ। ये सच्ची मोहब्बत है। इसको छोड़ के अगर कोई कुछ कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ इसके लिए जिम्मेदार होंगे हम। इतना बोलते हैं ऐसा हो, इसलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर ऐसा है तो उसको ठीक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कल और आज से 2 दिन में ही शुरू हुआ है, इसके बाद भी अभी 2 दिन जाने का है। इसलिए मैं ऑफिसर हजरात से और कमेटी वालों के हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आज कुछ जाने वालों के कोई भी तकलीफ नहीं हो सका, आप लोग देख लेना। बहुत मैं फिर एक बार आप लोगों से दरख्वास्त करते हुए मुझे भी यहाँ बुलाकर जो बात करने का मौका दिया, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए तो आपकी दरख्वास्त करते हुए तमाम लोग रियासत के हक में और हम तमाम लोगों के हक में दुआ फरमाइए। इतना दरख्वास्त करते हुए मैं बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। और मैं अभी मौलाना मकसूद उड़ान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आप बजरंग दल के लोगों से भी हम कहना चाहेंगे कि ये शूटिंग और फला ये सारी चीजों को छोड़ दीजिए। 1991 में कह दिया गया और ये फैसला कर दिया गया कि बाबरी मस्जिद के अलावा जितने इस वक्त इबादत गाहे हैं उनको मेंटेन किया जाएगा। वो उसी तरह अगर मंदिर है तो मंदिर होगी, अगर गिरजाघर है तो गिरजाघर, अगर मस्जिद है तो मस्जिद। अब इसके बारे में छेड़छाड़ करके शूलिंग तलाश करके अमन को खराब न करे। अल्लाह करे, अल्लाह रब्बुल जलाल हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। हमारे यहाँ के अकाबिर उलमा हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहू यहाँ अमन के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी रियासत में किसी तरह का कोई खलल वाक़ई न हो। और हमारे अरबाब इख्तिदार भी और इसी तरह पुलिस का महकमा और आला अफसरान भी और हमारे डिपार्टमेंट के IAS अफसरान भी मिलकर हजरात उलमा से मशवरा करके हमारे इस मुल्क में अमन और अमान को बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनकी इन तमाम कोशिशों पे मैं सलाम करता हूँ। अल्लाह इनकी इन कोशिशों को कबूल फरमाए और इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। मैं बस इन चंद कलिमात के हुज्जात-ए-किराम जैसे ही अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद वहाँ पर थोड़ी कार्रवाई बाकी है, उसको मुकम्मल करते हुए बसों की तरफ फंक्शन में आए। मैं सभी का पहले हज करने कर्नाटक स्टेट हज कमेटी की तरफ से दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। 2022 का जो हज का फ्लाइट इनाग्रेशन जो फंक्शन था, इसमें हमारे कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जनाब बसवराज बोम्मई साहब आए और हम कर्नाटक स्टेट हज कमेटी तरफ से बहुत उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आज एक बीजेपी की कोर कमेटी MLC इलेक्शन की थी, बहुत उनका शेड्यूल टाइट था, फिर भी मैंने उनको बात किया और हमारे EO साहब भी उनसे बात किए कि आना है, तो उन्होंने वादा किया कि 10 मिनट में आके जाओ।
और अल्हम्दुलिल्लाह वो आए, काफ़ी अच्छी तकरीर किए, हमारे हज हाउस के लिए ग्रांट देने की बात किए हैं और पूरे हाजियों को मुबारकबाद दिए हैं और हाजियों से ये अपील करे हैं दुआ के लिए अमन और शांति रहे मुल्क में और कर्नाटक में, भाईचारा को कायम रखे और सब में खुलूस मोहब्बत रहे। इस तरह की हमारे बसवराज बोम्मई साहब चीफ मिनिस्टर पूरे हाजियों से दरख्वास्त की है कि दुआ के लिए। और मैं आज का जो फंक्शन हुआ है उसके लिए मैं हमारे कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के पूरे मेंबर्स और हमारा स्टाफ इस कार्यक्रम में, इस फंक्शन में सभी का योगदान रहा कि सभी का खुलूस मोहब्बत और सबका भाईचारा, सबकी मेहनतों से आज इस कार्यक्रम हम एक सक्सेसफुल कार्यक्रम किए और तमाम हाजी लगभग मैं समझता हूँ 2000 हाजी इस कैंपस में थे और लगभग 5 से 10,000 लोग इस कैंपस के बाहर लोग थे। तो लगभग आज हज़ारों की संख्या इस कर्नाटक स्टेट हज भवन के दरमियान में थी और मैं पूरे आए वालों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इस वक्त वो लोग इस कार्यक्रम में आके उन्होंने एक सक्सेसफुल बनाया है। जोले साहब जो है हमारे मैडम साहिबा अभी कुछ ही देर में आने वाले हैं क्योंकि उन्होंने कुछ एक कोर कमेटी मीटिंग में बिजी रहने से नहीं आ सके। कल का और भी हमारे फंक्शन 4-7 फ्लाइट जाने वाले हैं, उस फ्लाइट के अंदर भी और मंत्री आने वाले हैं जिसमें हमारे केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी जी है, एक्स CM हमारे सदानंद गौड़ा जी है, भगवंत खोबा जी है, ऐसे मंत्री लोग भी हमारे अगले कार्यक्रम में ज्वाइन होने वाले हैं। देखिए, ये सालाना जो हज पे जाने का मौका बहुत सारे लोगों को मिलता है, वो पिछले 2 साल से हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में हज करने का मौका लोगों को नहीं मिला था। अब 2 साल के बाद में इस बार 30 to 40% लोगों को मौका मिल रहा है। तो मैं मानता हूं कि जिनको भी इस बार मौका मिला है कि वो बहुत तकदीर वाले हैं, खुशनसीब लोग हैं, उनको मौका मिला है। हम लोगों ने अपील किया है कि आप लोग जाके हमारे मुल्क के हालात सुधरने के लिए दुआ करें और रिश्ते अच्छे होने के लिए, बहाल होने के लिए दुआ करें और हमारे समाज में जो है चैन अमन के लिए दुआ करें और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए दुआ करें। हम लोगों ने सबसे अपील किया है। यहाँ पे हमारे चीफ मिनिस्टर भी आए थे, यहाँ के लोकल हमारे MLA भी आए थे, बहुत सारे दूसरे MLAs MLCs भी आए थे, अपनी अपनी बात रखे हैं। चीफ मिनिस्टर ने वादा भी किया है कि जो भी ज़रूरत है ऑडिटोरियम के लिए या बहुत सारे और दूसरे फैसिलिटीज़ के लिए जो ज़रूरत है, चीफ मिनिस्टर ने कहा है, वादा किया है कि वो जो भी फंडिंग की ज़रूरत है वो फंडिंग करेंगे। साथ में हम लोगों ने भी हज कमेटी की तरफ से वादा किए हैं कि मंगलूर, हुबली और गुलबर्गा में जो है हज भवन हम लोग बनाएंगे। 11 महीने दूसरे एक्टिविटीज़ के लिए हम उसका इस्तेमाल करेंगे, ये 1 महीना हज के लिए इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे भी और जो भी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है उसकी भी हम तामीर करेंगे। आज का प्रोग्राम बहुत उम्दा पैमाने पर हुआ। यहाँ के आज़मीन बहुत खुश है हज को जाने के लिए। हमारे यहाँ पर लीडर्स और यहाँ के तमाम लीडर्स और मेंबर्स मिलकर बहुत सारे खिदमत किए हैं। यहाँ के वॉलंटियर्स और सभी मेहमान जाने वाले हज को बहुत खुश हैं। यहाँ के आज़मीन को रहने के लिए सहूलत है, खाने के लिए सहूलत है, यहाँ से मदीना जाने तक की सहूलत है और उनको वापसी में रवानगी के वक्त में भी उनको सहूलत दी है। इंशाअल्लाह यहाँ के तमाम हाजियाँ बहुत खुश हैं और तमाम मेंबर्स को इतनी खुशी हो रही कि अभी कभी ऐसी खुशी हमें ज़ाहिर नहीं हुई थी, जिसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हम हज कमेटी के मेंबर होते हुए इतनी सारी खिदमत का मौका मिला, इससे हम बहुत बहुत खुश हैं। अब तमाम मेंबर और लीडर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। खुदा क्या दरख्वास्त करें आज़मीन से? जी, आज़मीन से दुआओं की दरख्वास्त किए और सारे भारत में और तमाम मुसलमानों के लिए और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए हम उनसे इल्तिजा किए कि जहाँ भी जाएं वो सबके लिए दुआ करें, अपने रिश्तेदारों को, अपने अहले वयाल को और तमाम लीडर्स को, और एकता ये और भारत में शांति और अमान रहे, ये आज़मीन के लिए हम आज इस जश्न का आगाज़ जो इतना आलीशान पैमाने पे है, इसे जो गलत अफवाहें उठाए उनके लिए एक मुंह तोड़ जवाब है। और दीगर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी गलत अफवाहें पिछले 3-4 दिनों से वेदर प्रिंट मीडिया में जो फैल रही है, उसको मैं कड़े शब्दों से निंदा करता हूँ। दूसरी बात, जो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया था, क्यों पता नहीं है, उसकी वजह क्या है हमको पता नहीं। क्योंकि जो लगेज का मसला है, वो मसला
ट्रांसपोर्टेशन में देर की वजह से हुआ, वो कोई पर्पसली उसको नहीं किया। आज के दिन में कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के पास 700 लगेज एक्सेस है और वैक्सीन भी हमारे पास एक्सेस है, और हमें खुद प्राइवेट हाजियों को 1450 पर 2 प्राइवेट हाजियों को कर्नाटका स्टेट हज कमेटी से वैक्सीन मुहैया किए। ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है। और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में इस कर्नाटका स्टेट हज कमेटी जो बीजेपी हुकूमत के तहत काम करती है और हमारे मोदी जी बताए हुए तरीक़े और नलिन कुमार जी की बताई हुई राह पे और एशआर मुंबई के अंडर लीडरशिप में आने वाले दिनों में बहुत अच्छी तरह पे इसको अंजाम दिया जाएगा। लेकिन तकलीफ तो हुई है। नहीं, तकलीफ नहीं है। एक बात है, हाजी 9 तारीख को रिपोर्ट करते हैं। हाजी का हज कमेटी का आगाज़ ऑफिशियली 7 तारीख से होता है, जो कल से हुआ। जो 7 तारीख से जब कल हुआ, उनको मुहैया जो भी बेसिक नेसेसिटी है वो सहूलतें फराहम की है, और नाश्ते से लेके खाने से लेके और 2 वक्त की चाय का इंतज़ाम किया है। जो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा है, माशाअल्लाह, हाँ, इसका जवाब अब एक आम हाजी इसका जवाब दिया जाएगा। सक्सेसफुल इनाग्रेशन प्रोग्राम जिसे कहा जाता है, जो हमेशा जिस तरीके से इनाग्रेशन जो हाजियों को विदा करते हैं, वो प्रोग्राम आज का जो प्रोग्राम है सबसे सक्सेसफुल कहता हूँ मैं। क्यों? आज जो जिस तरह से आज चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं और जितने आए थे यहाँ पे मेंबर हजरात, और टोटल जितने हम हजरात को दावतनामा दिए थे लीडर्स को, पूरे आए हैं और अच्छी तरीके से हमारे हजरात मेंबर हजरात काम करे हैं। तमाम हजरात को मैं हाजियों को दुआ की दरख्वास्त करता हूँ, सारे हिंदुस्तान के लिए, कर्नाटका के लिए, और जो आज के जो माहौल चल रहे हैं कौम परस्ती की, वो इत्तेफाक रहने की दुआ करें। और उनके साथ साथ हमें हज कमेटी के मेंबर्स और जो स्टाफ के लिए भी दुआ की अपील करता हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा और सभी को मैं पहले मुबारकबाद देता हूँ, और हमारे रियासत कर्नाटक के वज़ीर आला जनाब एसआर बोम्मई साहब को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो आए, हज घर पे आए और इनाग्रेशन करें, और मैं उनका और हमारे कमेटी की तरफ से और हमारे हाजियों की तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और रहा माशाल्लाह सबसे अच्छा आज फंक्शन गुज़रा है, और यहाँ पर हाजियों की अच्छी से खिदमत हुई, और माशाल्लाह आज रात में वो निकलेंगे और कल सवेरे उनकी फ़्लाइट है माशाल्लाह। और कई हाजियों की दुआएं आज हमारे रियासत कर्नाटक में, उनकी दुआएं उनके साथ हैं, और हमारे हर मौलाना जितने भी आए थे, जो तकरीर किए, जो दुआएं किए, माशाल्लाह उनके लिए, जो हाजियों के लिए जो जाकर आएंगे, जब तक भी उन्होंने दुआ किए, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन था आज का दिन। देखिए इंतज़ामात है ना माशाल्लाह पूरे मुकम्मल हो गए हैं, और रहा सूटकेस का जो लगेजों का एक थोड़ा सा देरी हुआ, और माशाल्लाह देरी होने के बावजूद भी हमारे हाजियों ने माशाल्लाह कोऑपरेट करे, और हमें उनसे बहुत बहुत खुशी भी मिली कि हाजियों को खाने का इंतज़ाम है, उनके साथ में आने वालों के लिए भी खाने का इंतज़ाम है जी। सभी को जहां यहाँ पर आने वालों के हाजियों को और उनके साथ आने वालों को सभी को माशाल्लाह खाने का इंतज़ाम है, और अच्छे से अच्छा इंतज़ाम किए हैं माशाल्लाह। और आने वालों को रहने का भी इंतज़ाम है। हाँ बिल्कुल, साथ में आने वालों के लिए थोड़े आदमियों के लिए है और थोड़े आदमियों को बाहर करना पड़ता है। बहुत खुशी हुआ आज का माहौल का, ख़ास माहौल का पर बहुत रोशनी रख के उन्होंने बात करें, और हिंदू मुसलमानों का बीच का अमन और अमान का बारे में, भाईचारा का बारे में बात करें। उनके स्पीच से बहुत उम्मीद होगा इंशाअल्लाह कर्नाटक रियासत का अंदर एक जल्दी से जल्दी जो कुछ लोग ये करना चाह रहे, भड़काऊ चाह रहे, वो सब ख़त्म होके एक भाईचारा इंशाअल्लाह जल्दी आ जाएगा। हज भवन के ताल्लुक से भी उन्होंने ऐलान किया है कि वो अभी मदद करने के लिए, हज भवन का उन्होंने तो ये तो तारीफ की है, पूरे लोग
पूरे मुल्क में बहुत बेहतरीन एक सेटअप है हमारा हज भवन का। अभी कुछ हज भवन को कुछ हम ये मदद चाहिए तो मैं ग्रांट्स दिला दूँ, और सेंट्रल हज कमेटी से भी, सेंट्रल हज चेयरमैन से भी उन्हें गुजारिश करें आप लोग भी करो। माशाअल्लाह आज हज का पहला दिन इब्तिदा है। इसमें बहुत खुशी की बात यह है, हमारे रियासत कर्नाटका के जनाब एस.आर. बम्बाई साहब जिस जलसे में शामिल हुए, और बहुत बड़ी बात है, एक अच्छा इन्होंने मैसेज पहुंचाया। तो हमारे रियासत कर्नाटका हो, पूरे देश के वास्ते हो, उन्होंने हाजियों के लिए तलब किया है कि दुआ की और अच्छा होए आइंदा चल के। और इसके बाद में जो है यहाँ पर हर चीज़ का बेहतरीन अंदाज से इंतज़ाम कर रहे हैं हाजी लोगों का, जो इंशाअल्लाह आज सुबह में 6 बजे पहली परवान शुरू होगी और इसके बाद 7 फ्लाइट्स होंगे, शायद हो सकता है, और 450 हाजी एक हवाई जहाज़ से चलेंगे। तो वो सऊदी एयरलाइंस है, पहले जो है मदीना शरीफ पहुंचेंगे और इसके बाद जो है वहाँ से जो है 10 दिन 40 नमाज़ों के बाद वहाँ से जो है उन्होंने मक्का तशरीफ़ ले जाएंगे हज के लिए। यानी कि 7 दिन हर दिन एक फ्लाइट है, कैसा है जी? हर दिन एक फ्लाइट है? नहीं, पहला आज जो फर्स्ट फ्लाइट है 6 बजे मॉर्निंग, और 12 तारीख को जो है 2 फ्लाइट हैं, और ऐसा अगेन जो है टोटली जो है 6 दिन या 7 दिन के अंदर टोटली जो है 3000 हाजी यहाँ से निकलेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है पूरी कि जो ईमान वाला है, जो तक़वे वाला है, वो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करता है। मुख्यमंत्री जो बोले हैं उस पर यकीन करना ज़रूरी है। वो इसलिए कि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है सारे हाजियों के लिए, कर्नाटक के लिए, सारे मुल्क के लिए, सारी इंसानियत के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और रहा दूसरी बात, अभी जो आप पूछ रहे थे, हाजियों को तकलीफ़ हो रही है, कुछ कमी पेशी हुई है, तो हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं आपसे, हज का सफ़र ही जो है मुश्किलों से भरा हुआ है। यहाँ से तो हाजी आराम से जाता है, वहाँ जाने के बाद जो मुश्किलें हैं हाजी के, वो आज के हालात में आप देख रहे हैं। अगर आप 40 साल पहले, 50 साल पहले चले जाइए आप पीछे, तो उस वक्त हाजी कैसे जाते थे, कितने तकलीफ़ों से जाते थे वो। आज तो अल्लाह का एहसान है, मालिक का करम है कि उस पाक परवरदिगार ने इतनी सहूलतें रखी है कि हाजी को जो है थोड़ी तकलीफ़ तो होगी। तो अब जो रहा अखबारात में जो आया है पिछले दिनों में, उसकी हम सरासर उसका खंडन करते हैं। वो इसलिए कि उन्होंने बेबुनियाद ये चीज़ बनाया है। उनको एक मुद्दा चाहिए था, यहाँ आकर देखते हो कि किन हालात में जो है हज का अनाउंसमेंट हुआ। हंगामी हालात में अनाउंसमेंट हुआ है ये पहले जैसे नॉर्मल होता था 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले, ऐसे नहीं हुआ है। पहले तो ये बताया गया कि पहली तारीख से पहली फ़्लाइट यहाँ से जाएगी, फिर उसको पोस्टपोन हुआ 4, फिर हुआ 9 तारीख। तो हमको टाइम बहुत कम मिला, लेकिन इस टाइम जो जितना भी कम मिला है, इसमें सारी हमारी कमेटी ने मिलकर जो काम किया है वाकई में तारीफ़ के काबिल है ये। क्योंकि आप पिछले हज कमेटियाँ आप उठाकर देखिए कि जो कामकाज होते थे वहाँ पर जो है मेंबरान का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था जितना इस बार हो रहा है। और सारे मेंबर मिलकर ये सारे चीज़ें जो 8 दिन या 10 दिन में जो हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह का एहसान है, मालिक का करम है, और हम सब हाजियों को मुबारकबाद देते हैं जो अल्लाह ने उनको चुना है, अल्लाह ने उनको अपना मेहमान बनाया है। और जो जिसका नाम नहीं आया है वो भी मायूस ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला हो सकता है इंशाअल्लाह अगले टाइम में, अगले साल में उनका भी नंबर आएगा इंशाअल्लाह। इन 2 बातों के साथ आपसे इजाज़त करता हूँ। माशाअल्लाह आज का प्रोग्राम अल्लाह के करम से बहुत अच्छा हुआ। हमारे चेयरमैन साहब, सारे मेंबरान, सब लोग दिन रात मेहनत करके ये जो हज का प्रोग्राम जो है हर साल की तरह ये बार भी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से किए, क्योंकि इसमें हर एक मेंबर की मेहनत है।
हर एक मेंबर एक एक जवाबदारी लेके आज काम किए हैं। वो गोया कि सूटकेस देना हो, कल मोइन भाई, हमारे चांद पाशा साहब, सब कबीर भाई, सब लोग रात तक यहाँ थे हमारे चेयरमैन साहब के साथ। और सुबह तक भी वो व्हीकल्स को ट्रेस करके लगेज लेके आए, तो तभी हम लोग ये लगेज दे पाए। पता नहीं ये हज कम्युनिटी ऑफ इंडिया का क्यों ऐसा कानून था कि सूटकेस वो देने वाले थे। तो ये हाजी को अगर बता देते कि आपको ये साइज़ का सूटकेस लाना है तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत आसान होती थी। इसके तरफ से क्या हो गया, ज़रा हज कमेटी के बारे में थोड़ा न्यूज़पेपर में थोड़े गलत आर्टिकल्स आए, इसमें हम हज कमेटी स्टेट कोई जो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन हाँ, स्टेट हज कमेटी की हमारी कोई भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर भी हम लोगों ने, सारे लोगों ने, पूरे कमेटी के चेयरमैन साहब, मेंबर्स, हम सब मिल के सारा इसको जो सक्सेस करना है इसको हम लोगों ने सक्सेस किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब 7 दिन फ्लाइट जाने वाले हैं तो हम लोग यहीं पर हैं। हर अभी जो है कि जो खादिमुल हुज्जाज जा रहे हैं तो 2-3 खादिमुल हुज्जाज के लिए 1 मेंबर को हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। तो हर दिन का रिपोर्ट जो हाजी का है वो रिपोर्ट लेंगे, सारे मेंबर्स रिपोर्ट लेंगे और उनकी कोई तकलीफ परेशानी हो तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। और जो भी अभी हाजी जा रहे हैं इंशाल्लाह ये बार जो है बहुत ही बेहतरीन उनका वहाँ पर रहन सहन रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली मेंबर्स उनसे लोगों से कांटेक्ट में रहेंगे। तो बहरहाल मैं फिर एक बार मेरे साथ हज कमेटी जो इतना कोऑपरेशन के साथ काम की है, इसके साथ मैं और हमारे मिनिस्टर साहिबा का और सेक्रेटरी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो भी, सेक्रेटरी साहब भी पिक्चर में नहीं है लेकिन बहुत हमारी पीछे से मदद किए हैं, सेक्रेटरी मणिनंद साहब, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करता हूँ कि हाजी खुशी से जाए और खुशी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो ये मुबारक हज का जो सफ़र की बुनियाद और यहाँ पर शुरुआत शुरू हुई है, जो आज इनाग्रेशन फंक्शन था, माशाल्लाह आज काबिल तारीफ़ है। और सभी हाजियों के लिए जो यहाँ पर VIPs और जिन्होंने आके दुआएं की और उनको हिदायत दी और एक मशवरे दिए, तो अल्लाह ये सभी मशवरे को इनके कबूल करेगा। और हिंदुस्तान और ख़ासकर हमारे कर्नाटका के अंदर सभी कौमी भाइयों को, चाहे वो किसी भी कौम से हो, हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान अमन के साथ रहे और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीक़े का माहौल पहले था ऐसा माहौल बने और हम भाईचारे से पूरे हिंदुस्तान की तरक्की के लिए हम पूरे इसके साथ लगे। हर कौम का यही इरादा होता है कि वो जहाँ भी रहता है अपने मुल्क की हिफाजत, मुल्क की खुशहाली के लिए चाहता है। हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा था कि जिस सरजमी पे आप रहो उस सरजमी को आप अपनी ज़मीन समझ के उसकी इबादत की तरह उसकी तरक्की में आप हमेशा मशगूल रहो। ये हिदायत हमें आज से नहीं, बरसों पहले हमारे रसूल ने हमें दी है और उसी का आज फॉलो करते हैं हमारे बोहरा जमात और बोहरा कौम के हमारे जो मौला दाई हैं, उनकी दुआओं से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी कौम के लोग एक डिसिप्लिन और एक व्यापारी तबका बनके इस देश की तरक्की के लिए उनकी दुआओं के साथ, हमारे मौला की सभी दुआओं के साथ, उनकी हिदायत के साथ और उनके फरमान के साथ पूरे हिंदुस्तान में आज बोहरी जमात के जितने भी लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं, रहते हैं और अच्छी सब चीज़ों में कामयाब भी हैं और हाल खुशहाल भी हैं। और सबका यही रहता है कि सब कौम के साथ मिलजुल के हम अपने अमन का चैन से रहे और अमन फैलाएं। दूसरा, आज जो इस हज हाउस की जो शान है, माशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, हम आसपास के जितने ही मुल्कों में फिरते देखते हैं कि ऐसा हज हाउस हमने इतना जो यहाँ का माहौल है, यहाँ की जो मकबूलियत है और यहाँ के जो लोग अपने दिलो जान से खिदमत करते हैं, जितने भी यहाँ पर वॉलंटियर्स हैं और जो भी इंचार्ज रहे, जितने भी चेयरमैन आए और इंचार्ज रहे, हमने देखा कि ये कर्नाटका के अंदर सब लोगों ने दिल से अपनी खिदमत अंजाम दी है और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमेशा इसी तरह यह सिलसिला जारी रहे। अस्सलाम वालेकुम। आज हज कमेटी के जो फर्स्ट फ्लाइट का इनाग्रेशन लिया है, 2 साल के कोविड के बाद आज पहली बार इस साल में जा रहे हैं और कम तादाद में जा रहे हैं, उसका मतलब 30% की तादाद में जा रहे हैं। फिर भी अल्लाह के करम से खुशी की बात है कि आज शुरू हुआ है। अल्लाह यही सबसे दुआ ये है कि सभी जितने भी हाजियाँ हैं उनका अरकान पूरा करें, उनका हज पूरा अता फरमाए और अल्लाह सबको भी
अरकान पूरा करके उनके जो अरमाना है पूरा करने का तौफीक अता फरमाए। और इस दौरान आज हमारे चीफ मिनिस्टर हुमायूं सर भी आए थे और हज कमेटी ने बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन तरीके से इस यहाँ का इस सब कुछ अरेंजमेंट्स किया है और किसी को भी तकलीफ नहीं, जैसा कम रहा है तो भी कोविड का ये रह के भी बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। और सभी आदमियों में आजकल जो आज फर्स्ट फ्लाइट जाने वाले हैं 3:30 बजे की फ़्लाइट है, इंशाल्लाह वहाँ भी शारिक होंगे सब लोग। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या बातें कही आज स्पीच में? आप भी देख रहे होंगे, आज भी सुने हैं चीफ मिनिस्टर साहब ने जो हमना ये खुशी की बात है कि जब बीजेपी का गवर्नमेंट था इसका शुरुआत किया और बीजेपी का ने ये किया आज चीफ मिनिस्टर के। और एक खुशी की बात है कि जो हुबली धारवाड़ में भी ऐसा ही हज कमेटी बनाने का और मंगलूर में भी बनाने का और हज हाउस बनाने का और गुलबर्गा 3 शहरों में उधर के लोगों को बहुत परेशानी है इतना दूर आके करने का। अगर से 4 हो गया तो ये मान के चलो एक माइलस्टोन हो जाएगा कर्नाटक के एक हिस्ट्री के अंदर। और इसी कोशिश में लगातार है हम लोग पूरे, यहाँ जात पात या पार्टी का कुछ भी है नहीं, ख़ास तौर पर हज और हाजियों का ख्याल करते हुए सब कुछ इंतज़ाम किया जा रहा है। तो माइनॉरिटीज़ को नेगलेक्ट किया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ की तरफ कोई तवज्जो नहीं, आपकी पार्टी की आपकी हुकूमत की ये बात बार बार सुनने को मिलती है। ये कौन बोल रहे हो पहले आप सोचिए, माइनॉरिटी को आप क्या बोल रहे हैं? बीजेपी के तरफ से नेगलेक्ट किया जा रहा है, मगर 70 साल के बाद बीजेपी वालों ने खुद हज हाउस का करना पड़ा और दूसरी जगह भी हमने जो सोच रहे हैं वो भी बीजेपी वाले हैं। खाली बोलने से कोई अच्छा नहीं हो जाता और बीजेपी वोट नहीं डालते बोल के कुछ ना कुछ ऐसा वैसा बोल सकते हैं, पर कभी भी माइनॉरिटी कुछ भी कम नहीं किया। या कौन से स्कीम में माइनॉरिटी को अलग करके दिया है आप बोलो? कुछ लोग ऐसे भी हैं बीजेपी में रहते हुए भी बीजेपी का नाम खराब करने के लिए कुछ लोग बोलते रहते हैं, उनका अभी कौन नहीं बोलता बोलो आजकल। अस्सलाम वालेकुम। ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದ ಅಂತಹ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ। ಈ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಬಾಳೋಣ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬಾಳೋಣ, ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಬರಲಿ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ತಾವು ಎಲ್ಲ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮೋರ್ಚಾದ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು अर्पिस्ता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जावेद सेठ है। मेरे को बहुत खुशी हो रही है। 2 साल से जो हज कैंप नहीं हुआ था, ये बार हज कैंप जो हुआ है, हाजियों जा रहे हैं, उसके लिए हम बहुत खुश हैं। और आवाम के वास्ते हमें पैगाम ये पहुंचाते हैं। लेकिन हम लोग एक खुशी क्या हुई कर बोला तो हम लोग को और क्या खुशी हुई कर बोला तो हम लोग को ये सुन्नी शिया सुन्नी है और अहले हदीस से ये पूरे जो कमेटी के जो मिल के इधर से जो रुखसत कर रही हैं, इन लोगों को हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है, बहुत ये हो रही है। अल्लाह से दुआ करते हैं हम लोग को भी हज को लेके जाए, हमारा माँ बहन के इधर का हम लोग को लेके जाए करके ये है। और साल इधर से हज का रवानगी होना चाहिए। इसके लिए आवाम के लिए एक पैगाम मैं ये करता हूँ, हर एक आइए, दुआ में शामिल हो जाइए, इंशाअल्लाह हमने भी तौफीक हज को जाने के लिए। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस में सवार होने वाले वजाजी कराम से गुजारिश है कि बिस्मिल्लाह कहकर सजा कदम रखें, अंदर जाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अल्लाह आपके सफर को कामयाब फरमा। कदम पर अपनी मजबूत नारज फरमाए। वजाजी कराम बस में
सवार होने वाले बिस्मिल्लाह होकर सीधा कदम रखे। जरूर भैया कहें। अल्लाह आपके सफर को कामयाब फरमाए। कदम कदम पर अल्लाह आपकी नुसरत व इयानत फरमाए। जो देखो खुदा का घर अभी भी याद कर लेना। रसूल पाक के दर पर हमें लेना। रसूल पाक से कहना कि दीवारें तड़पती हैं जो है बेबाल और बेपर अभी भी याद कर लेना। जो देखो तुम खुदा का घर अभी भी याद कर लेना। सफा की हो पहाड़ी हो हिमालय की बुलंदी हो रुको जब तुम वहां जाकर अभी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु व लकल मज्दु कुल्लु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लु ला मलजा व ला मंजा मिनका इल्ला इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला दीनन इल्ला क़ज़ैता वला मरीज़न इल्ला शफ़ैता वला हाजतन मिन हवाइजि दुनिया वल आखिरा हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलालि वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि अमराज़ना व अमराज़ल मुस्लिमीन वक़्ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुहताजीन। रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर। या अहदस समदल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अकरमल अकरमीन या ज़ल जलाली वल इकराम। के बाद हमारा ये हज का काफिला अल्लाह हमारी इस सरजमीन से पहला काफिला रवाना हो रहा। ऐ मेरे अल्लाह ऐ मेरे रब हम वही अल्फाज कहेंगे जिसे हज़रत सुलेमान ने फरमाया हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफुर वमन शकर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सी वमन कफ़र फ़इन्न रब्बी गनिय्युन करीम। मेरे अल्लाह आप जिसे ये सआदत बख्शा है वही अहबाब तेरी पाक सरजमीन पे पहुँचने वाले हैं। अल्लाह इनके कदम तेरे नबी की सरजमीन पे पड़ने वाले हैं। अल्लाह फिर उम्रा अदा करने वाले हैं हज अदा करने वाले हैं। अल्लाह मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होने के लिए बस में सवार हो गए हैं। ऐ मेरे अल्लाह हम यही कहेंगे ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। अल्लाह आप जिसे चाहते हैं अल्लाह ये सारी इज़्ज़तें अता फरमाते हैं ये फ़ज़ल अता फरमाते हैं। मेरे अल्लाह तड़प थी हम में से हर एक को लेकिन अल्लाह रास्ते की वजह से बीमारी की वजह से हम जा नहीं पाए। अल्लाह ये ज़िंदगी आपके तरफ से अता की गई है। अल्लाह ये जो वायरस आया
इसकी वजह से हम में से बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार हमसे रुखसत हो गए, अल्लाह हमसे दूर हो गए। अल्लाह ये ज़िंदगी आपके तरफ से दी हुई अमानत है, अल्लाह इसे समझकर पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे ये जितने अहबाब अल्लाह हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होने जा रहे हैं या रवाना हो रहे हैं, ऐ मेरे रब सबको बेइंतहा कबूल फरमा, सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। तेरे नबी के रोज़े पे पहुँचकर हर किस्म की बेअदबी करने से इनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह अदब के साथ अल्लाह सलाम का नजराना पेश करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अपने लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए जहाँ दुआ करेंगे, अल्लाह पूरी उम्मत के लिए दुआ करने की और पूरी इंसानियत के लिए दुआ करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ये पूरा मजमा इस वक्त यहाँ इन हाजियों को देखने के लिए, अपनी दुआओं से रुखसत करने के लिए आया है। अल्लाह सबकी दुआएं इन हाजियों के हक़ में कबूल फरमा। अल्लाह यहाँ बहुत सारे अहबाब शुरू से लेके अब तक बराबर खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। अल्लाह बहुत से खादिम हैं, अल्लाह बाज़ वो हैं जो यहाँ हाजियों के बैतुल खला भी साफ करते हैं। अल्लाह इनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, सिर्फ इस मकसद से कि ये तेरे घर पहुँचने वाले हैं। अल्लाह ये हाजियों का बोझ उठाते हैं, जैसे ऐ मेरे रब हज़रत अब्बास पानी पिलाते थे और उनके ख़ानदान वाले खिदमत अंजाम देते थे, इसी तरह यहाँ भी हमारे ये पूरे अहबाब मिल के हाजियों की खिदमत कर रहे हैं।